प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसार पतिता पावना हेतु तव अवतारा। क्षमा पतिता प्रभु न पाइबे आराम। क्षमा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे। प्रभु रूपबलन कर आमी बन दुखी। कृपाबलन आमी बन दुखी। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई। दया कर तब कृपा बले पाई जजन्यानि पाई। तब कृपा बले पाई जजन्यानि पाई। स्वरूप नाथन रूप रघुनाथ। स्वरूप नाथन रूप रघुनाथ। भट जुग सिया प्रभु लोकनाथ। भट दया कर आचर्य प्रभु जे निभाषा। दया रामचंद्र संग मंगे नरतम दासा। कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे।
तुम्हारे नखे दयालु जगत संसार तुम्हारे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Nitari Gauranga, Nitari Gauranga.
Gauranga, Jai Gauranga, Jai Gauranga, Jai Gauranga, Jai Gauranga, Gaura Hare, Jai Gauranga, Gaura Hare, Gaura 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 Hare, Gaura 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 Hare, Jaya Satyanandana, Jaya Satyanandana, Jaya Satyanandana, Jaya Satyanandana, Jaya Satyanandana, Gaura Hare, Jaya Satyanandana, Gaura Hare, Pateta Pavana Gaura Hare, Pateta Pavana Gaura Hare, Gaura 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 Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Vrindavan Chanda Radha Vrindavan Chanda Radhe, Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Suratha Jaya Suratha, Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai, Srinivasa Govinda Sri Venkatesa Govinda, Srinivasa Govinda Sri Venkatesa Govinda, Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada, Jaya Jaya Hari Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Jai Vishnupada Paramahansa Parivage Krashtotar Shatava Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Grantara Srimad Bhagavad Gita Jatharo ki Jai Gaura Premanande. Om Namah Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Bhagavate Vasudevaya, Narayana Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistike
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से पाठ अध्याय क्रमांक 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 27। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। उच्चै श्रवसम् अश्वानाम् विधिमाम् अमृतभावम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्चै श्रवसम् अश्वानां विधिमाम् अमृतध्वजम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नरधिपम् उच्चैश्रवसम् अश्वानां विधिमाम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्चैश्रवसश्वानां विधिमाम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्चैश्रवसश्वानां ऐरावतं गजेन्द्राणां च नराधिपम्। और कहीं पढ़ेंगे शिवा प्रभु। उच्चैश्रवसमश्वानां विधिमाम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां उच्चैश्रवसश्वानां विधिमाम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। शब्दार्थ उच्चैश्रवसम् उच्चश्रवा अश्वानां घोड़े में विधि जानी जानो सॉरी माम मुझको अमृत उद्भवम समुद्र मंथन से उत्पन्न ऐरावतम ऐरावत गजेन्द्राणाम मुख्य हाथियों में नराणाम मनुष्यों में च तथा नराधिपम राजा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद घोड़े में मुझे उच्च श्रवा जानो
जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराज में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्य में मैं राजा हूँ। तात्पर्य: एक बार देवों तथा असुरों में समुद्र मंथन में भाग लिए। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिए, किंतु अमृत के साथ उनके अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चश्रवा नामक घोड़ा भी था। उसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नाम का हाथी भी उत्पन्न हुआ था। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि है। मनुष्य में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक है और अपने देवी गुण के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अत्यंत विनाश हो गया है। किंतु ये समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं तं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति तापदान्ति तं वन्देऽहं श्रीगुरुस्यूतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं सावितं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी उपस्थित भक्तों को यहाँ पे नववर्ष का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। पिछले साल भी हमने बनाया था,
है ना? हाँ, अच्छा, 1 तारीख को उठे नहीं थे सुबह सुबह, है ना? तो अपने हर साल नए साल बनाते हैं, है ना? नए साल को स्वागत करते हैं, लेकिन क्या नया साल अच्छा गया? नया साल अच्छा गया? यही संस्पर्शा जब होगा दुख व्यने अंत्यो। भगवान 5वां अध्याय के 22 नंबर श्लोक में बोलते हैं, आप जिस सुख को तलाश करते हो, यही संस्पर्शा जब होगा। ये जो इंद्रिय है, इस इंद्रिय के माध्यम से इंद्रिय वस्तु को भोग करना चाहते हैं, वही हमारा दुख का कारण बनता है ना? तुमने कितने साल, हम जितने साल आता है हम सबको क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर, है ना? 1 साल पहले भी हमने बोले थे हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन हुआ क्या हैप्पी न्यू ईयर? नहीं ना, क्योंकि भगवान ने इस संसार को ऐसे बनाया, दुखालय आश्वासतम पदम पदम यत् पिपतम ना तेषाम। हर पद में क्या है? खतरा है, हर मुहूर्त में खतरा है, हर पल पल में खतरा है। ऐसा नहीं कि महीने में 1 बार, साल में 1 बार खतरा, है ना, कष्ट आना साल में 1 बार नहीं, हर पद में, हर कदम में क्या है? खतरा है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी फ्लाइट में जा रहे थे, तो उस समय ऐसे उनको सुनाई पड़ा अनाउंसमेंट, घोषणा हुई कि हमारा फ्लाइट इतने हाइट में है ना, और इतनी ऊंचाई पर है, और इतने रफ्तार में, इतना स्पीड में जा रहा है, लेकिन हमारा एक इंजन बिगड़ गया है ना, और हमारे इंजीनियर लोग उसको प्रयास कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन आप निश्चित रहिए। है ना? हम जाते हैं, रास्ता में देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि टेम्पररी इनकन्वीनियंस, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? खेद है क्या? असुविधा के लिए खेद है कि नहीं? और साल भर हम देखते हैं कि एक्चुअली वो ठीक हो जाता है, फिर दूसरा जगह आ जाता है ना? और यहाँ तो मैं नेला में देखा, मैं 3 साल से देख रहा हूँ, वो ब्रिज ऐसे ही है ना? क्या क्या? हाँ, है कि नहीं? तो आप भौतिक जगत को कितना भी ठीक करो, कितना भी सजाड़ो, उसको क्या है? ये बिगड़ने वाला वस्तु है। यहाँ पे कोई चीज़ क्या है? शाश्वत नहीं है, अश्वासत है, टेम्पररी है। टेम्पररी समझते ना? हाँ, एक सुंदर सा फूल लेके आओ सुबह सुबह, कितना खुशबू, कितना सुंदर दिखता है, 1-2 घंटे के बाद क्या होता है? वो भी मुरझा हो जाता है। कोई भी वस्तु को आप बनाओ, अच्छा से सुंदर केक बनाए, तो ऐसा लगता है कि केक हमेशा के लिए ऐसा रहे, लेकिन खाने के लिए भी इच्छा हो रहा है, लेकिन खाएंगे तो क्या होगा? उसका सौंदर्य भी नष्ट हो जाएगा, है ना? तो भगवान इसलिए संसार को ऐसे बनाए हैं कि आप चाहे कितना भी कुछ भी करो, उसको एक्चुअली वो ठीक रहने वाला नहीं है ना? इसलिए दुखालय आश्वासतम बताया गया है कि नहीं? लेकिन हम भक्त के जीवन में देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई अगर भक्त आके इसको मिलते थे, तो महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते थे। क्या आशीर्वाद देते? कृष्ण मति राहु, आपके क्या बोलते हैं, मन हमेशा कृष्ण के चरण में रहो, कृष्ण मति राहु। कोई अगर भक्त है, कोई अगर नया व्यक्ति आता है कोई मिलने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु को आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण मति रस्तु। दोनों अलग है, समझ गए ना? तो यही आशीर्वाद हमारे जो वैष्णव ये, लेकिन लोग साधु संत के पास जाते हैं, साधु सन्यासी के पास जाते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए, कि क्या आशीर्वाद मांगते? हाँ, भौतिक सुख के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। कि मान लो कि यार किसी साधु ने आपको आशीर्वाद दे दिया, कि साधु ने आपको आशीर्वाद दिया कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, लेकिन अंतिम में क्या होगा? बिजनेस को तो छोड़ के जाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? और ऐसे साधु संत के पास कोई जाता है तो उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन वो आशीर्वाद के बदले उसको श्राप देते हैं
कि तुम्हारा सारे ऐश्वर्य नष्ट हो जाए। तो कौन सा अच्छा है, पहला वाला अच्छा है कि दूसरा वाला अच्छा है? हाँ शिवा प्रभु, कौन सा अच्छा है? हाँ न डाउट है इसमें। अरे नष्ट तो होने वाला है कि नहीं? नष्ट तो होने वाला है ना? तो इस प्रकार से पूरे विश्व में हम देखते हैं कि हम लोग नया साल बना रहे हैं, है ना? लेकिन वो ऐसे ही है ना? चाहे कितने आपको आशीर्वाद क्यों ना दो कि आप दूसरे को आशीर्वाद दो, लेकिन हमको सुख नहीं मिलने वाला है ना? इसलिए भागवत में उदाहरण आता है कि कोई व्यक्ति अगर गलती से गन्ना समझते ना, सुगार केन को, है ना, बांस को अगर गन्ना जैसे समझ देता है और चबाता है उसको जूस निकालने के लिए, केवल खोल निकलता है ना, जीवा कट जाता है, लेकिन स्वाद मिलता है, रस मिलता है? रस नहीं मिलता है कि नहीं? या च्युइंगम, हम देखते थे बचपन में, हम च्युइंगम खाते थे, 1 मिनट के लिए रहता है कि नहीं? मुंह में डाल दिया तो फिर वो उसका जो शक्कर निकल गया तो फिर ऐसे है, लेकिन बार बार चबाते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने प्रार्थना बोलते हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वण नाम। जो वस्तु एक्चुअली क्या है, उसको चबाया गया है, उसमें कोई रस नहीं है, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति एक्चुअली उसको फिर से चबाता है, ये सोच के क्या है, थोड़ा रस मिलेगा, थोड़ा रस मिलेगा, है ना? पुनः पुनः चर्विता चर्वण नाम। इसलिए प्रहलाद महाराज, जितने भी हमारे साधु संत हैं, तो उनका वही उपदेश है ना, कि आप यही संस्पर्श जब होगा, या विषयाभिनिवर्तन्ते नीराहारस्य दहिना रसोवर्जम रसोवर्षम परम दृष्ट्वा निवर्तते। रस तो है, नहीं तो क्यों ढूंढ रहे हम? रस है, आनंद है, लेकिन आनंद कहाँ मिलता है? भगवान के नाम में मिलता है, भगवान के कीर्तन में मिलता है ना? मिलता है कि नहीं आपको? तो शुरुआत के दिन में हम जैसे राधा कुंज बिहारी के मंदिर में हर फ्राइडे को शाम को आते थे, कंपनी से छुटकारा, 2 दिन के लिए छुट्टी, अभी शनिवार रविवार भूल जाओ कंपनी का, है ना? तभी मोबाइल फ़ोन नहीं था कि आप वर्क फ्रॉम होम है कि नहीं? तो आपको 2 दिन हो गया तो फिर आप फिर मंडे को जब पहुंचेंगे फिर आपको बस आपको पूछेगा, है ना? नहीं तो 2 दिन बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो शाम के समय ऐसा कीर्तन होता था, उसमें एक नया लड़का, किसने उसको दोस्त को लेके आया, है ना, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का था, और नहीं बहुत उसका अच्छा लगा, खूब नाचा उसने, और बोला कि पूछा कि ऐसा नाचना प्रोग्राम कब होता है आपका? हम बोले कि हर दिन सुबह होता है। कितने बजे? बोला 4:30 बजे। बोले 4:30 बजे नहीं आ सकता हूँ। बोला ठीक है शाम को आ जाओ। तो दूसरे दिन उसने शाम को आ गया, मतलब शनिवार शाम को आ गया। तो उसको एक्चुअली भक्त लोग ने, क्योंकि वो नौकरी कर रहा था, तो भक्त लोग ने उसको नया धोती कुर्ता दे दिए, है ना? वो भी जूट का था, 2 प्रकार का आता है, जूट मतलब थोड़ा फाइन दामी वाला, है ना? तो उसने पहन लिया, बहुत अच्छा लगा उसको, नया पहना है धोती, और जूट का है ना, वो स्लीपर ही है ना? फिर भी उसको गांठ लगा के पहन लिया। ऐसा कीर्तन किया कि उसने उसका कुर्ता को फाड़ लिया, मतलब वो कीर्तन से मतलब कुछ गुस्से से नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसको इतना अच्छा लगा, है ना, कि और भक्त बन गया। अभी पता नहीं मेरे को कहाँ पे है वो उसका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली, है कि नहीं? लेकिन पहला देखिए, हमने पहला उसको अनुभव दिया भगवान के सामने, उसको कीर्तन किया, उसने कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल जीरो, भक्ति का ABCD भी उसको पता नहीं था ना, लेकिन उसको कितना कृपा मिला। देखिए बाहर संसार में ऐसे कोई अगर कुर्ता फाड़ दिया तो कितना गुस्सा हो जाएगा, 300-400 रुपये का, है ना? तो इसमें देखते हैं कि भगवान के नाम कीर्तन में कितना आनंद है ना? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में वही बताते कि आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम। यहाँ पे हर क्षण में क्या है? आनंद है। और भौतिक जीवन में हर क्षण में क्या है?
दुख ही दुख है। तो भौतिकवादी लोग जो है वो भी स्ट्रगल करते हैं, वो भी संघर्ष है जीवन। और हम भक्त के जीवन में देखते हैं कि उनको भी संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी बिजनेस ये हो जाता है, कभी कभी फेल हो जाता है, कभी कभी लॉकडाउन हो जाता है कि नहीं, नौकरी चला जाता है ना। हमारे जीवन में संघर्ष है, लेकिन हमारा जीवन संघर्ष कैसा है, इसलिए बोलते हैं कि हैप्पी स्ट्रगल, अंग्रेजी में बोलते हैं हमारा स्ट्रगल क्या है, हैप्पी स्ट्रगल। अब भौतिकवादी जीवन के लिए उनके स्ट्रगल क्या है, वो दुखी है ना, दुखी है एक्चुअली हमेशा, है कि नहीं, कभी उसको सुख प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इस अध्याय में भगवान का ऐश्वर्य के बारे में यहाँ पे आज बताया जाता है कि घोड़े में मुझे उच्च श्रवा जानते। तो पता है कि एक समुद्र मंथन के समय कई सारे वस्तु निकला, को पता है समुद्र मंथन 8वां अध्याय में, 6ठा अध्याय से लेके 8वां स्कंद से 6ठा अध्याय से लेके इसका वर्णन है। और तो ये भी आपको पता होगा हमेशा, क्योंकि भगवान के सारे भक्त है, भगवान के सारे हम सब अंश है, मम अंश जीवलोक जीवभूता सनातना। लेकिन उसमें दो श्रेणी का है, एक है सूर, दूसरा है असुर। सूर जो है भगवान के नियम को पालन करते हैं, असुर जो है वो भगवान का नियम को पालन नहीं करते, इसलिए देवता और असुर। और दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, लड़ाई होता है। कभी कभी असुर लोग जीत जाते हैं। असुर लोग कैसे जीत जाते हैं, उनके जो गुरु, कौन है असुर लोगों का गुरु, शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य को लोग प्रसन्न जब करते, शुक्राचार्य उनको आशीर्वाद देते हैं, गुरु यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद है, यस्य प्रसादात, वो जीत जाते हैं। हाँ, खूब लड़ाई होता है एक्चुअली, देवता लोग डर के भाग जाते हैं अपने आसन, यहाँ तक कि इंद्र अपने जो राज सिंहासन छोड़ के भी भाग जाते हैं। मृत्यु सबको भय है ना, ये मत सोचो कि एक्चुअली देवता बन गए तो हमारा कोई भय नहीं है ना। और कभी कभी देवता लोग भी जुट जाते हैं जब लोग भगवान को प्रसन्न करते हैं। और देवता लोग के गुरु कौन है, हाँ, बृहस्पति, है ना। लेकिन कभी कभी देवता लोग क्या करते हैं, बृहस्पति का अपमान कर लेते हैं। इंद्र एक बार ऐसा अपमान कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, तो बृहस्पति तो वो तो गुरु है एक्चुअली, हम यहाँ भगवान आगे जाके बताएं, गुरु में मैं बृहस्पति हूँ, है ना। लेकिन बृहस्पति क्या किया है, इतना बोले बच्चा है ऐसे कर, है ना, तो वो तो चले गए। लेकिन इंद्र को महसूस हुआ कि मैंने गुरु के प्रति मैंने अपमान किया, ढूंढते रहे, लेकिन बृहस्पति ना आसन छोड़ के चले गए थे, मिले नहीं आज बृहस्पति। तो इसके कारण क्या, देवता लोग, असुर लोग क्या किए, बहुत प्रभावशाली हो गए, है ना। और असुर लोग क्या किए, सारे देवता को भगा दिए अपने प्रति। और देवता लोग भाग के कहाँ जाएंगे, जाएंगे कहाँ। लेकिन देवता लोग इस प्रकार से है, चाहे उनको कितने भी कष्ट आए, वो हमेशा भगवान के, हाँ, इसलिए उनको बताया कि वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो आप बोलेंगे ठीक है, हम देवता लोगों के शरण में जाएंगे, क्योंकि वो देवता है, भगवान को मानते हैं। वो मानते जरूर है, लेकिन किसके लिए, भौतिक सुख के लिए, भौतिक इच्छा के लिए भगवान के पास जाते। कोई भी कठिनाई आते तो भगवान के शरण में जाते। जो भगवान के शरण में गए तो भगवान ने उनको ये बोला कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप दोनों समझौता कीजिए, देवता और असुर, है ना। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समुद्र का मंथन पड़ेगा। कौन सा समुद्र, ये हमारा लवण सागर नहीं है, कौन सा, क्षीर समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, है ना। और मंथन करने से आपको क्या प्राप्त होगा, अमृत प्राप्त होगा। और आप अमृत को पान करेंगे, फिर आप क्या, अमर रहेंगे। यह अमरकंठ क्या है ना, जहाँ पे नर्मदा का उद्गम है ना। तो अमृत पान करेंगे तो फिर आप अमर रहेंगे। तो देवता लोग तो इतना भयभीत है, बोले क्या करें, अभी तो कोई चारा नहीं है, किसी ना किसी से उनको सिर्फ समझौता करना पड़ेगा। तो देवता लोग तैयार हुए। फिर असुर लोग को बुला गया। तो असुर लोग को जो ये प्रस्ताव रखा गया, तो असुर लोग, अच्छा अमृत निकलेगा, बहुत बढ़िया, हम अमृत पियेंगे ताकि देवता लोग हमको हरा नहीं पाएंगे, है ना।
तो लेकिन देवासुर लोग राजी इसलिए हो गए क्योंकि उनके मन में यह विचार था, ठीक है हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे, समुद्र का मंथन करेंगे, लेकिन जब अमृत निकलेगा हम उसको छीन के पी लेंगे, देवता लोगों को एक बूंद भी हम नहीं देंगे। तो हमेशा भौतिकवादी लोग वही सोचते हैं कि जो भी संसार में जो भी कुछ है ये मेरे लिए, मेरे भोग के लिए, मैं दूसरे को कुछ देना नहीं चाहता हूँ, बराबर ना। इसलिए तो लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों अमेरिका के साथ ईरान का लड़ाई क्यों होता है? हाँ, कुछ कमी है क्या अमेरिका में? बताओ, कोई भूखे है वहाँ पे? कमी है नहीं ना। लेकिन उसका नज़र किसके ऊपर? ईरान इराक के ऊपर। क्यों? वहाँ पे क्या है? लिक्विड मनी है। लिक्विड मनी क्या है? क्या है? पेट्रोलियम है। अमेरिका में वैसे कम नहीं है, अमेरिका में बहुत पेट्रोलियम है। बताया जाता है कि अमेरिका पेट्रोल खरीदता रहता है कि जमीन में इतना टैंकर बनाया उसने। भगवान भी जमीन में बना के रखा है, लेकिन जितना जरूरत है उतना है कि नहीं। लेकिन असुर लोग समझते हैं कि आगे नहीं मिलेगा, लड़ाई होगा जाएगा, तो उन्हें खूब स्टॉक करके रखा है, खूब स्टॉक करके रखा है। एक बार आग लगेगा ना, पूरा अमेरिका डूब जाएगा है कि नहीं। लोभ है ना, क्या है? लोभ है। क्राम काम क्रोध लोभ त्रिविधम नरक द्वार। भगवान गीता में बताते हैं कि काम, क्रोध और तीसरा क्या है? लोभ। ये किसका द्वार है? ये नरक जाने के लिए द्वार है ना। इसे लोभ नहीं करना चाहिए। तो इतना लोभ के कारण लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो उनके मन में तो यही विचार था। देवता लोग के कोई विचार नहीं। देवता लोग, क्योंकि भगवान उनको सलाह दिए कि आप लोग समझौता कीजिए और अमृत निकलेगा और मैं आपको अमृत पिलाऊंगा। तो दोनों तैयार हो गए, असुर लोग भी तैयार हो गए। अच्छा ठीक है, क्षीर सागर को तो मंथन किया जाएगा, लेकिन मंथन का दंड तो चाहिए ना, क्या बोलते हैं उसको? मथानी चाहिए। तो मथानी के रूप में किसको चुना गया? मंदार पर्वत, विशाल पर्वत, एक्चुअली मेरू पर्वत जैसे मंदार पर्वत को चुना गया। तो उसको लेके आके कहाँ डालेंगे? क्षीर सागर में डालेंगे एक्चुअली पति। तो सारे देवता लोग, असुर लोग तैयार प्रयास किए उसको उठाने के लिए, है ना। हम देखते हैं ना, कभी काम होता है बड़ा चीज़ को उठाने के लिए, है कि नहीं, तो लोग बहुत जोश लगा के एक्चुअली उठाते हैं, है ना, जोश आ जाते हैं, नहीं सब अगर मिल जाते तो फिर जोश आ जाता है। तो बहुत प्रयास किया एक्चुअली, तो कभी थोड़ा कोई उठा रहा था, फिर वो दूसरी तरफ गिर गया। तो ऐसा हुआ एक्चुअली कि कई सारे असुर, कई सारे देवता का किसका हाथ टूट गया, किसका पैर टूट गया, किसका सिर टूट गया, बड़ा परेशान हो गए। बोले तो शुरुआत है, क्या है ये? शुरुआत है। यहाँ जाए मंदार पर्वत कब जाएगा वहाँ तक, फिर मंथन कब होगा, फिर क्या, हाँ अमृत कब निकलेगा, हम अमर कब बनेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि उत्साह, निश्चय और धैर्य चाहिए हर कार्य के लिए। क्या है? धैर्य चाहिए। उत्साह है, उस निश्चय है, लेकिन धैर्य नहीं रहता है ना। हम देखते हैं शुरुआत के भक्त लोग बहुत ही उत्साही है, लेकिन उनको जल्दी चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट टू ईट, हाँ क्या, स्लो टू डाइजेस्ट। फास्ट खा लिया गप गप गप, है ना, लेकिन पेट में जाके पेट खराब हो जाता है ना। तो भौतिक स्पेशल कली युग में हर लोग को क्या चाहिए? जल्द चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। लेकिन जगन्नाथ जी के लीला में हम देखते हैं कि एक माता थी केतकी, राजस्थान की, बताते हैं राजस्थान से आई थी, है ना। तो भगवान ने इसको खिचड़ी खाने के लिए रोज आते थे जगन्नाथ जी, और कभी लेट होता तो जगन्नाथ जी उसको बोलते होते कि कर माँ जल्दी कर मेरे को खिचड़ी भूख लग रहा है जल्दी, क्योंकि मेरा दर्शन के लिए लाखों लोग रुके एक्चुअली दर्शन करने के लिए, जल्दी कर देते। तो भगवान की सेवा में हमको नहीं, लेकिन खुद के इसके लिए हमको उत्साह, निश्चय और धैर्य चाहिए। तुमको धैर्य नहीं था, बड़े परेशान हो गए, फिर से जाके भगवान को विनती किए। भगवान बोले ठीक है मैं आता हूँ। तो भगवान गरुड़ जी को, भगवान आए और उस मंदारा पर्वत को उठाए और उठा के कहाँ रखे? हाँ किसके पीठ में?
गरुड़ जी के पीठ में रखे, गरुड़ जी के पीठ में रखे और उतरा नहीं, सारे देवता लोग असुर लोग को भी बैठाया, बैठो क्योंकि लेट हो गया ना आपको जाते समय, है ना। गरुड़ जी का स्पीड पता है ना कितना, गरुड़ जी जब चलते हैं कौन सी वेद निकलता है, शाम वेद। तो इतने महान है गरुड़ जी, भगवान के वाहन है, कोई साधारण थोड़ी होंगे, है ना। तो गरुड़ जी को सांप को बैठा के, एक्चुअली सारे देवता लोगों को बैठा के अभी पहुंचे कहाँ पे, क्षीर सागर के तट पे पहुंचे। और पहुंचने के बाद अभी भगवान गरुड़ जी के माध्यम से उसको समुद्र के बीचों बीच डाल दिए, है ना। और अभी वासुकी जो तैयार हो गए थे, किसके लिए, वासुकी को बुलाया गया था, किसके लिए, किसके लिए, रस्सी बनने के लिए। बहुत ही कठिन कार्य है, रस्सी बनना मतलब घिसना है, पता है आपको, समझ गए ना। कोई रस्सी बनने के लिए तैयार होगा, हाँ। तो वासुकी को बुलाया गया एक्चुअली, क्योंकि भगवान का महान भक्त है, उनको बुलाया गया कि आप इस कार्य में सहायता कीजिए। वो तैयार हो गए। भगवान का सेवाएं कौन छोड़ेगा एक्चुअली, चाहे कितना भी कठिन हो। तो वासुकी अपने आप को बीच में मंदारा पर्वत उसमें लपेटे, और एक तरफ से उनका मुंह रहा और दूसरे तरफ से उनका पूंछ, है ना। तो उसमें लेकिन वासुकी तो पहले तैयार नहीं हुए, वासुकी पहले तैयार नहीं हुए आने के लिए। क्यों, हाँ, वासुकी क्यों नहीं तैयार हुए आने के लिए। मान तो लिए मैं सेवा करूंगा, लेकिन डर गए, किस लिए, हाँ, गरुड़ जी उधर खड़े हैं। और गरुड़ जी और वासुकी में क्या संबंध है, एक दूसरे का आहार है, भोजन है, जीवो जीवो से जीवनम। लोग पूछते हैं अरे तुम लोग बोलते हो तुम वेजिटेरियन हो, है ना, मांसाहार नहीं करते हो, दूध नहीं पीते हो, फल नहीं, है ना, लेकिन दूध खाते हो जो गाय से आता है, और फल खाते हो, फल में भी जीवन है। लेकिन हम वेजिटेरियन नहीं है, हम क्या है, कृष्णटेरियन। हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो वो लोग बोले हम भी भोग लगाएंगे, काली का प्रसाद। कलकत्ता में दुकान में लगा देते हैं काली का, माँ काली का प्रसाद, है ना, वहाँ मांस मिलता है। लोग लाइन पे खड़े रहते हैं काली का प्रसाद लेने के लिए। वो काली का प्रसाद है क्या, बताओ, है ना, है कि नहीं। तो हम भगवान को भोग लगा के जब खाते हैं वो प्रसाद बन जाता है ना, उससे वो पाप से मुक्त हो जाते हैं हम। तो जब गरुड़ जी को पता चला तो गरुड़ जी भाग गए दूर। जो गरुड़ जी दूर भाग गए तो वासुकी को बुलाया गया। तो वासुकी आगे, अभी देवता लोग बताया कि असुर लोग को कि देवता लोग रहेंगे वासुकी के सामने और असुर लोग रहेंगे वासुकी के पीछे। देवता लोग बोले कि ऑब्जेक्शन, असुर लोग बोले ये नहीं हो सकता है। अरे हम क्यों पीछे रहेंगे, हम बोलते ना तुम पीछे रहो। बोले नहीं पीछे, हमको आगे रहना है ना। तो असुर लोग बोले, भगवान बोले अच्छा ठीक है क्या करना है ना, हमको आगे रहना है। तो भगवान देवता लोग बोले ठीक है तुम पीछे आओ। तो देवता लोग सारे पीछे आ गए, असुर लोग एकदम ना चले गए आगे एक्चुअली बढ़ते थे। तो मंथन शुरू हुआ। लेकिन मंथन शुरू हुआ तो क्या हुआ, इतना बड़ा पर्वत है ना, तो वो क्या हुआ, वो असंतुलित हो गया, वालांश नहीं रह पाया। तो अभी क्या हो जाए, फिर से परेशान हो गए। तो भगवान उस समय कौन सी रूप लेके आए, कूर्म रूप, है ना, केशव धृता कूर्म शरीरा, केशव धृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे। तो भगवान देखिए इस लीला में भगवान भक्तों के असुर के सब कितना मदद करते हैं। इसलिए भगवान के कोई भी हम कार्य करना चाहते हैं, बिना भगवान के आशीर्वाद से, बिना भगवान के कृपा से हम कुछ नहीं कर सकते। हर पल पल में हम भगवान के ऊपर निर्भर रहते। तो वह कूर्म अवतार भगवान लेके आ गए और मंदारा पर्वत के नीचे चले गए। तो मंथन हो रहा था, लेकिन भगवान को कैसे लग रहा था, हाँ, खुजली। हमको भी खुजली लगता है ना, तो बड़ा आनंद आता है, कहते नहीं। तो भगवान को जो खुजली हो रहा था, तो भगवान को कौन सी पर्वत थे, मंदारा पर्वत के नीचे भगवान का पीठ को खुजली हो रहा था। भगवान को बिल्कुल बड़ा आनंद है भगवान बताते, है ना। लेकिन आगे तो भी भगवान है अभी भी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, असंतुलित हुआ। इसलिए भगवान सहस्र बाहु
और एक भगवान ने रूप लिए सहस्र भाव करके, कहाँ बैठे, नीचे से अभी कुर्म अवतार लेके बैठे और ऊपर से भगवान आके सहस्र भाव लेके फिर से बैठे। तो फिर शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो अभी वासुकी ने मुंह से क्या निकला, हाँ, विष निकला, अग्नि निकला, सती। तो ये लोग असुर लोग कौन थे, वासुकी के मुंह के पास असुर लोग थे, बड़े परेशान हो गए, है ना। तो भगवान बोले मैंने तो पहले बताया था इसलिए आपको पीछे रहो, अपने मेरे बात माने नहीं, है ना। तो कैसे भी एक्चुअली फिर जो मंथन शुरू हुआ, है ना, तो ऐसे बताया था कि हमेशा असुर और सुर के बीच में हमेशा क्या होता है, ये झगड़ा, लड़ाई, हमेशा द्वेष भाव होता है ना। तो जब तक एक्चुअली प्रभुपाद स्वामी को आदेश दिए कि जब तक हम साथ में नहीं रहेंगे, कोई कार्य करने के लिए कठिनाई आएगा, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, धैर्य के साथ एक्चुअली उसको सामना करना पड़ेगा, तभी अंतिम में क्या आएगा, अमृत आएगा। और भगवान ने पहले ही आदेश दिए थे कि आप समुद्र मंथन जरूर करेंगे, लेकिन पहले आपको अमृत नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, हाँ, पहले विष निकलेगा, उस विष को सहन करना पड़ेगा, एक फिर एक के बाद एक बहुत सारे क्या आएगा, अलग अलग वस्तु आएंगे, है ना। अभी विष कोई नहीं पीना चाहता है, लेकिन अच्छे वस्तु मिलेगा तो, कीमती वस्तु मिलेगा तो वो मेरे लिए है, होता है ना, हर समय होता है कि, है ना, कोई अच्छे वस्तु मानते ही मेरे लिए है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने जो बताया ये शुरू हुआ, फिर मंथन शुरू हुआ। तो पहले क्या निकला, कौन सा विष निकला, कालकूट हलाहल विष निकला, भयंकर विष था एक्चुअली सती। उसको लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, ना असुर लोग तैयार थे ना सूर लोग तैयार थे, कोई भी तैयार नहीं था। विष कौन पीने के लिए कौन तैयार होगा, हाँ। तो उसमें भगवान शंकर को आदेश दिए, है कि नहीं, कि आप जाइए एक्चुअली देते। तो भगवान शंकर आए और विष को पिए, लेकिन कहाँ धारण किए, वो अपने कंठ में धारण किए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, नीलकंठा, है ना। तो इसलिए क्योंकि भगवान शंकर जो है वैष्णव नाम जथा शंभु, जितने भी वैष्णव है उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, भगवान शंकर है, भगवान शिव जी है ना। तो भगवान ने शिव जी को हलाहल विष को पीने के लिए माध्यम बनाया, क्योंकि भगवान यही बताना चाहते हैं कि वैष्णव को ऐसे होना चाहिए, है ना। क्योंकि विष ऐसा था कि अगर कोई विष को पी लेगा तो क्या होगा, उसका मृत्यु निश्चित है। अगर नहीं पिएगा तो क्या होगा, अगर विष को मान लो कि नहीं पिएगा, उसे फेंक देंगे तो क्या होगा, हाँ, क्या होगा, दूसरे का हानि होगा ना। जितने भी जीवात्मा है, जीव जंतु है, सब का हानि हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये पीना क्या था, जरूरी था। तो बोलेंगे भगवान शंकर तो पीनेंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे ना। इसलिए भगवान शंकर कहाँ धारण किए, उसको अपने कंठ में धारण किए। बाद में अलग पुराण में बताया जाता है कि तो इसलिए लोग भगवान शंकर को मानते हैं। और यहाँ तक कि बोलते भगवान शंकर, यहाँ पे भगवान विष्णु क्यों नहीं पिए, इसलिए भगवान शंकर महान है। क्या भगवान शंकर महान है नहीं है, नहीं है। भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त मेरे से महान है। तो भगवान शंकर को ये महानता बताना चाहते हैं सारे विश्व को, सारे ना। तो इसलिए पृथ्वी को, इसलिए उन्होंने इस विष के माध्यम से चली। और भगवान विष किसने बनाया, विष कहाँ से आया, हाँ, भगवान से आया ना। सब कुछ तो भगवान से आया ना, तो विष भी भगवान से आया, हाँ। तो इसका प्रभाव भी भगवान चाहेंगे तो उसको मीठा बना देंगे, जहर को भी मीठा बना सकते हैं। पुतना के वध में भगवान ने क्या पिए ना, पुतना का जो कालकुट विष को भी पिए, और दूध भी पिए, और प्राण भी पिए। तो भगवान के लिए क्या, वो कोई भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते, कोई भी चीज़ को हजम कर सकते, हम नहीं कर सकते, है ना। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि अग्नि, कोई भी वस्तु अग्नि में डालते तो क्या हो जाता है, जल के राख हो जाता है।
लेकिन उसके अंदर, अग्नि के अंदर ऐसा भी कोई जीवात्मा है, वो रहता है उसमें, क्योंकि उसका शरीर कैसे बना है? आग से बना है, अग्नि से बना है। पृथ्वी रापो अनल, अनल मतलब अग्नि, जो जिसका शरीर अग्नि से बना है तो उसको अग्नि से कोई भय नहीं है ना। तो भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन बाद में बताया जाता है कि भगवान शंकर लोग पी तो लिए, लेकिन वहाँ पे कंठ में धारण किए, और बाद में भगवान नरसिंह देव को उन्होंने फिर वापस दिए पीने के लिए है कि नहीं? तो आप बोलेंगे अरे झूठा हो गया ना, फिर झूठा हो गया ना, शंकर जी ने लिए फिर वापस दिए तो क्या हो गया? झूठा हो गया ना। तो भगवान अपने भक्त का झूठा खाते हैं, भगवान अपने भक्तों का झूठा खाते हैं। चैतन्य महाप्रभु खाए ना, कौन सी लीला में खाए? रघुनाथ दास गोस्वामी। और दक्षिण भारत में स्वयं रंगनाथन, सॉरी रंगनाथन नहीं, कांचीपुर में, सॉरी भरद्वाज, स्वयं भरद्वाज अपने भक्त कांचीपुर के झूठा खाया। देखिए, क्योंकि वो महा प्रसाद बनता है। क्या बनता है वो? भगवान खाने से वो प्रसाद बन जाता है, लेकिन भगवान का भक्त खाने से वो महाप्रसाद बन जाता है। भगवान के भक्त खाने के बाद फिर भगवान खाते तो महाप्रसाद बनता है। तो ऐसा प्रसाद को भगवान क्यों छोड़ेंगे एक्चुअली इस मौका? अब भगवान कृष्ण तो खा रहे थे, अपने ग्वाल वाल का साथियों का झूठा तो खा रहे थे ना, है कि नहीं? तो हलाहल विष निकला। तो इस प्रकार से हम भी देखते हैं कि पहले हमको बताया जाता है कि चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी, आप आओ भक्त का संग करो, कथा को कीर्तन करो, आपका जीवन बहुत आनंद सुखमय होगा। लेकिन होता है? होता है? होता है? होता है? इसका मतलब हम जप नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे। अगर भक्ति करेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ पे समुद्र का मंथन हुआ तो क्या निकला? हाँ, क्या निकला? जहर निकला ना, विष। आनंद इधर आता है, घर में विष निकलता है। यह आनंद क्यों आता है कि थोड़े समय के लिए आते हो, यहाँ साथ में रहो, आनंद निकलेगा। यहाँ भक्तों के साथ में रहेंगे ना, वहाँ घर के साथ में रहते हैं ना, अति परिचय अवज्ञा बताते हैं ना, भक्तों के साथ में रहेंगे तो वहाँ पे भी विष निकलेगा, ये गारंटी है। तो बताया गया ना, प्रोसेस बताया गया, आप थोड़ी उसको ये कर सकते। भक्तों के साथ में रहेंगे तो फिर विष निकलेगा, है ना? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जो लोग भक्त रहे हैं उनको अनुभव है ना? इसलिए लोग छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए लोग छोड़ के चले जाते। भक्त के संग में नहीं रहूंगा, घर पे रहूंगा, भक्ति करूंगा, है कि नहीं? वहां घर वाले भी भक्त बन जाते तो फिर घर वाले भी भक्त बन जाते हैं तो फिर, तो इसलिए इस जो भौतिक जो जीवन है ना, तो ये मत समझो कि केवल हम हमेशा समझते कि अच्छा और बुरा में संघर्ष होता है, भक्त और अभक्त हम देखते हैं। नहीं, अच्छे में भी संघर्ष होता है, बुरे में भी संघर्ष होता है ना? इसलिए प्रभुपाद कहानी बताते थे कि ऑनेस्टी अमंग द थीव्स। 3 चोर एक बार गए चोरी करने के लिए, खूब माल लूटे और आके बोले कि इसको हिसाब किताब करना, कौन कितना किसको मिलेगा। लेकिन साहब हर चोर का ये था क्या कि मैं लूट लूंगा, कि दोनों को भगा दूंगा। हर चोर का ये ऑनेस्टी। लेकिन तीनों में क्या बोले कि बंटवारा करेंगे। तो उन्होंने एक को चुना, बोले भूख लग रहा है, तुम जाके तो क्या करो, कुछ भोजन लेके आओ, है ना? तो उसको भगा दिए। ये दोनों में वापस ये कर दिए कि वो उसने जब गया तो ये सोच, उसने बोला कि ठीक है मैं भोजन लेके आऊँगा, लेकिन उसके क्या करूँ, क्या डाल दूंगा? जहर डाल दूंगा। ये दोनों में खा लेंगे, हमें सारा लेके जाऊंगा, है कि नहीं? तो ऑनेस्टी अमंग द थीव्स, है ना? तो ये मत सोचो कि एक्चुअली कि अच्छे में भी संघर्ष नहीं होते, अच्छे से भी संघर्ष होता है। जिस समय माता सीता का हरण हो गया, सीता माता का हरण हुआ ना पंचवटी में, नासिक में पंचवटी में जब हरण हुआ
अभी प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण को सौंप के दिए थे कि आप, मैं जा रहा हूँ इस जो सोने का हिरण मरीचि आया था ना, तो उसको पीछा करने के लिए उसको अभी भगवान को ये पक्का पता था कि क्योंकि भगवान ने सृष्टि की है उनके सृष्टि में यह हिरण नहीं है, सोने का हिरण नहीं है, तो उसके पीछे भगवान कैसे भ्रमित हो गए बताइए, है ना। भगवान इसलिए भ्रमित हो गए क्योंकि पहली बार माता सीता ने किसी चीज को मांगी हो। हाँ, पत्नी का मांग तो पति को पूरा करना पड़ता है ना, वो पहली बार असुनित थी। तो भगवान राम चले गए, लेकिन लक्ष्मण को बोले कि सीता माता का ख्याल रखना। तो लक्ष्मण तो सीता माता का ख्याल रखते। उसमें रावण आया कि जब सीता माता को अपहरण करके लिए, है ना तो रावण आया, फिर तो मरीचि का वध किए राम, तो मरीचि ने चिल्लाया जोर से, हे सीते, हे लक्ष्मण। तो सीता माता बिल्कुल घबरा गई, और सीता माता को ये पता था कि भगवान राम का भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसा सृष्टि में कोई है नहीं, है ना। लेकिन वो भी भ्रमित हो गए, है ना, वो भी भ्रमित हो गए, और लक्ष्मण को आदेश दे रहे कि जाओ तुम। लक्ष्मण भी, क्योंकि लक्ष्मण के अंदर इतना क्या था, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं, विश्वास, आत्मविश्वास। लक्ष्मण को भी इतना विश्वास था कि मेरे भाई प्रभु रामचंद्र को भी कुछ नहीं हुआ, ये माया जो हिरण था। तो लक्ष्मण बिल्कुल हिले नहीं चली। लक्ष्मण बोले आप निश्चित रहिए, प्रभु रामचंद्र वापस आएंगे। तो यहाँ पे लक्ष्मण जो है वो कॉन्फिडेंस थे, किससे, आत्मविश्वास था कि प्रभु रामचंद्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वह सीता माता का वो क्या था, इमोशनल थी, सेंटिमेंटल थी। स्त्री होने के नाते क्या थी वो, इमोशनल को क्या बोलते हैं हिंदी में, भावना समझते है ना, कि मेरे पति पुकार रहे हैं तो आपको जाना चाहिए उनका ये करने के लिए। फिर कैसे भाई आप देते ही, तो दोनों को इसमें झगड़ा हो गया ना, हुआ कि नहीं, है कि नहीं। दोनों में भक्ति, इनका भक्ति किसके प्रति था, लक्ष्मण के भक्ति राम के प्रति। इसमें कोई ये क्या बताइए, 14 साल तक लक्ष्मण ने सोए नहीं है, यहाँ तक बताया कि भोजन भी नहीं किए, केवल प्रभु रामचंद्र को साथ में रहने के लिए। देखिए क्या सेवा भाव है ना। आज सीता माता का पतिव्रता कितना है, भगवान रामचंद्र जी का पति देखिए। लेकिन दोनों के बीच में क्या हो गया, इतना बड़ा झगड़ा हो गया और चले गए वो। लेकिन जाते समय क्या किए वो, लक्ष्मण रेखा, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं बताया गया, कौन सी रामायण में बताया गया, ये तुलसीदास रामचरितमानस में बताया गया कि लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा छोड़े, बोले इससे आगे नहीं जाने का। देखिए है कि नहीं। और बाद में जब जाके मिले प्रभु रामचंद्र लिख के फिर ये हो गया, अरे आप कैसे सुनते हैं। तो भगवान राम को अभी बिल्कुल कुछ ये नहीं रहा, वो समझ गए कि आज चलिए अभी बहुत बड़ा कुछ अघटन हुआ है, आके देखे सीता माता नहीं है चलिए। तो लक्ष्मण को इतना डांटे, क्यों थोड़े रहते। तो लक्ष्मण बोल रहे हैं कि एक्चुअली मैं क्या करूँ, मेरे को अपमान सहन नहीं हुआ में नहीं। क्योंकि सीता माता जब लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे तो सीता माता बोले कि मुझे पता है ना, आप ये चाहते कि अगर मेरे पति रामचंद्र का अगर वध हो जाएगा तो फिर आप मुझे प्राप्त करने के लिए अपने देते हैं। तो ये लक्ष्मण को कभी सहा नहीं हुआ अपने देते ना। तो लक्ष्मण बोले मैं सहन नहीं कर पाया अपने देते। और प्रभु रामचंद्र बोलते कि आपने क्यों छोड़ के गया, है ना। तो आपको पता है कि स्त्री जो होता है हमेशा भावुकता रहती है। स्त्री क्या है वो, भावुकता मतलब सेंटिमेंटल। लेकिन आपको सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए था, आपको सहन करना चाहिए था। तो जो भी है ऐसा मत है। तो हमेशा ऐसा मत सोचिए कि अच्छे और बुराई का संघर्ष होता है, अच्छे और अच्छे के बीच में भी संघर्ष होता है। फिर हलाहल कुटजा ने तो जैसे मैं बता रहा था कि जैसे हम भक्ति करते हैं, जो जितना तीव्रता से हम भक्ति करते हैं से उतने तीव्रता से क्या होता है, हमारा विष निकलता है, विष निकलता है ना। तो ये मत सोचो कि एक्चुअली विष नहीं निकलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हमने अगर नदी से जाके पानी लेके आया
है ना, थोड़ा सा धूल वगैरह बैठा होता है अंदर, है ना, कुछ समय के लिए हम पानी रख देते तो क्या हो जाता है, बिल्कुल स्वच्छ दिखता है, बिल्कुल आर पार ट्रांसपेरेंट। लेकिन उसको हिलाएंगे तो अंदर पानी के नीचे है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन पानी के नीचे, नीचे तो है ना, ऊपर आता है। हाँ, तो भक्ति से आने से पहले हम ऐसे ही थे एक्चुअली, है ना, एकदम अच्छा दिख रहे थे, लेकिन सारे गंदगी अनर्थ सब बैठा था नीचे नीचे। जो मंथन हुआ तो क्या हुआ, ऊपर आया, बाहर आया। अभी बाहर आया लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा है, किसको दिख रहा है? हाँ, किसको दिख रहा है? दूसरे भक्तों को दिख रहा है ना, तो वो बोल रहा है कि देखो 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 थे। और हमको क्या होता है, गुस्सा आता है, नहीं मैं इतना अच्छा जप कर रहा हूँ, इतना अच्छा सेवा कर रहा हूँ, इतना अच्छा भजन कर रहा हूँ, अरे लेकिन उसको दिख रहा है तो बताएगा ना। बोलते हैं इस समय हमको क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए। तो जितना हम सहन करेंगे तो क्या होगा, वो जो मैला है, वो जो धूल होगा, वो गंदगी अनर्थ वो चला जाएगा। वो चला जाने के बाद फिर हम साफ हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए हमको सहन करना चाहिए। तो पहले ये बताया जाता है कि हलाहल विष आया, हलाहल विष के बाद फिर सुरवी गाय, है ना, सुरवी गाय समुद्र मंथन से प्रकट हुई। तो सुरवी गाय को कौन प्राप्त किए, तो भगवान बताए थे ये सारे निकलेगा, लेकिन आप झगड़ा नहीं करने का। भगवान ने ये भी बताया था कि क्या क्या निकलेगा और किसको देना है, मिल बांट के, है ना। तो सुरवी गाय किन को प्राप्त हुआ, हाँ, सुरवी गाय इंद्र के पास नहीं था, हाँ, ऋषियों मुनि ऋषियों को दे दिए सुरवी गाय, आप लीजिए अपने तथी, है ना। इसके बाद ये जो बताया गया घोड़ा, उच्चश्रवा घोड़ा निकला। इस घोड़ा को किसको दिया गया, किसको, हाँ, दैत्यराज, कौन, बलि महाराज। ये ऐसा घोड़ा नहीं था, सफेद कलर का घोड़ा था है ना। तो उसको बलि महाराज को दिया गया, तो वो खुश हो गए, मतलब असुर लोग खुश हो गए, है ना। तो इसके बाद ऐरावत निकला, वो भी सफेद कलर का था, लेकिन वो ऐरावत कैसा था पता है क्या, 4 दांत वाले ऐरावत था। तो ऐरावत निकला, तो ऐरावत को किसको दिया गया, इंद्र जी, मिल बांट के ना, एक असुर लेंगे या फिर लेंगे तो ऐरावत को प्राप्त हो क्या हुआ, इंद्र को ऐरावत प्राप्त हुआ, है ना। और इसके बाद बताया था कि 8 हाथी निकले, बड़े बड़े हाथी थे, और उसके साथ एक्चुअली 8 जो है और स्त्री हाथी निकले एक्चुअली, है ना। और इसके बाद कौस्तुभ मणि निकला। तो कौस्तुभ मणि किनको प्राप्त हुआ, हाँ, कौस्तुभ मणि, हाँ, अभी भगवान कृष्ण को दिया गया कि आप कौस्तुभ मणि लीजिए, तो भगवान ले लिए कौस्तुभ मणि, है ना। इसके बाद बताया कि और एक मणि निकला जिसका नाम है पद्मराग। कौन सा मणि, कौन सा मणि, कौस्तुभ मणि के साथ और एक जो मणि निकला जिसका नाम है पद्मराग, है ना। और वो बताने किसको दिया गया, है ना। पद्मराग के बाद फिर निकला पारिजात। क्या है पारिजात, हाँ, फूल निकला, पारिजात फूल निकला। वो किसको दिया गया, देवताओं को दिया गया। देवताओं के जो उद्यान है वहाँ पे पारिजात थे, जिसके लिए इंद्र का झगड़ा हुआ ना, इंद्र और भगवान के साथ झगड़ा हुआ ना, सत्यभामा को लेके गए थे, तो पारिजात को प्राप्त है। पारिजात के बाद फिर अप्सराएं निकले, बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं निकले। तो अप्सराएं किनको दिया गया, इंद्र के राज दरबार में अप्सराएं को दिया गया, है ना। उसके बाद फिर बताया जाता है कि लक्ष्मी देवी, रमा, जिसका नाम क्या हुआ, रमा। तो रमा किसकी पुत्री हुई, समुद्र की पुत्री हुई रमा। तो रमा जब निकले एक्चुअली, और अपने सारे जो देवता लोग थे, ऋषियाँ लोग थे, सब ने क्या किया, उनका अभिषेक कराया। बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत में 8वां स्कंद में, सब उनको अभिषेक करा गया और उनको फूल माला अर्पण किया गया, कमल का फूल। तो रमा देवी ने अपने हाथ में कमल का माला लेके अपने पति को छूने के लिए गए। सब लोग, देवता लोग, असुर लोग बोल रहे थे कि वो जरूर मुझे अपने पति के रूप में छूने।
और असुर को तो वो देखे भी नहीं, है ना। लेकिन सारे जो देवता लोग भी अपने में इच्छा था, और सारे देवता के पास वो जाती थी और सारे देवता का कुछ ना कुछ दोष निकालती थी वो, है ना। दोस्त तो सबके अंदर है ना, 4 दोस्त तो हम सबके अंदर है ना। लेकिन वो भगवान विष्णु के पास गए, वहां जाके भगवान विष्णु का भी दोष निकाले। क्या था भगवान विष्णु का दोष? कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु का कोई दोष है क्या, बताओ? हाँ, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान का दोष क्या? दोष था भगवान का? बोले मुझे तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन भगवान विष्णु मुझे भी नहीं चाहती है, है ना। इनका दोष क्या है? भगवान नारायण जो विष्णु है, उनका क्या दोष है? मुझे नहीं चाहती हो। मुझे सब लोग चाहते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं चाह रहे। हाँ, और अंतिम में रमा जी जो क्या किए, किनको बरमणा अर्पण की? भगवान विष्णु नारायण को बरमाला अर्पण की, है ना। तो इसके बाद बताया था कि बारूणी निकला। बारूणी क्या पता है आपको? नहीं, मदिरा, शराब, है ना। वो किनको प्राप्त हुआ? असुर लोगों को दिया गया। वो भी खुश रहेंगे ना, तो उनको दिया गया। तो उसके बाद फिर बताया जाता है कि अंतिम में फिर अमृत निकला। कौन निकले लेके आए अमृत? धन्वंतरी। कौन है धन्वंतरी? वो भी बताया था कि भगवान के अवतार है, जो अमृत कलश को लेके आए। जो अमृत कलश को देखे, बस मुंह में पानी निकला। किसका? किनका? असुर लोगों को मुंह में पानी निकला। तो पहले तो इसने योजना बनाए थे, ठीक है हम सहायता करेंगे, लेकिन अमृत निकलने के बाद बस हम लेके भाग जाएंगे। तो उसमें है इंद्र का, सॉरी, तो सब लोग योजना बना रहे थे कि ये अपेक्षा थी एक्चुअली अमृत कब निकलेगा, अमृत कब निकलेगा। जो अमृत निकला तो फिर देवता लोग ने झगड़ा शुरू कर दिए। और उस समय आगे इंद्र के पुत्र आए जयंत, वो कलश लेके भागे। जो कलश लेके भागे, सारे असुर लोग उनके पीछे भागे, और दोनों में पूरा झगड़ा हुआ। तो बताया था कि 12 दिन तक ये झगड़ा चला। छीना झपटी पता है ना आपको? तो उसमें से क्या हुआ? कुछ अमृत का बूंद जो नीचे गिरा। कहाँ कहाँ गिरा? नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार। तो इसलिए बताते कि हर 12 साल में, क्योंकि देवता के जो 12 दिन है, हमारा 12 साल है, तो हर 12 साल में क्या होता है? वहाँ कुंभ मेला निकलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या गिरा? अमृत का ये थी, वही मुहूर्त जो आता है। और उसको आज भी अगर जाएंगे, वहाँ भी साधु लोग झगड़ते कि कौन पहले जाके शाही स्नान करेगा। है कि नहीं, है ना। और हमारे पास क्या? अमृत हर दिन मिलता है, हर रोज मिलता है, हर क्षण मिलता है, लेकिन फिर हमको इसके प्रति कोई ध्यान नहीं है ना। भगवान के नाम में जो अमृत है, बाकी किसका नहीं। ये देवता लोग अमृत पिए जरूर, है ना, लेकिन अमर मतलब क्या? ज़्यादा लंबी उम्र हो गया, कोई बीमारी नहीं हुआ इसमें थे। लेकिन हमेशा के लिए कोई नहीं हुई इसमें थे। हिरण्यकशिपु भी हमेशा के लिए नहीं हुआ इसमें थे। तो फिर भगवान इसमें, फिर भगवान को कौन सी रूप लेके आना पड़ा? मोहिनी मूर्ति लेके आना पड़ा भगवान को। देखिए इस लीला में भगवान कितने सारा अवतार लिए। केवल देवताओं को और असुर को सहायता करने के लिए, है ना। तो जब मोहिनी मूर्ति निकला तो सारे असुर एक्चुअली देख के बिल्कुल भ्रमित हो गए। और असुर लोग तो पूछने लगे एक्चुअली कि किनका पुत्री हो। लेकिन देखिए असुर लोग, असुर जरूर थे, लेकिन फिर भी उनका शिष्टाचार था, मतलब एटिकेट्स सीखे थे, पढ़े थे ना, शुक्राचार्य के स्कूल में पढ़े ना। तो पूछने लगे कि किनकी पुत्री हो तुम, है ना, क्योंकि बिना पिता के ये से तो विवाह नहीं संभव, है ना। तो सब लोग चाहने लगे अपने देते ही। और अभी देवता लोग मुंह लटका के बैठे, गया अभी, है ना। भगवान उनको बोले अपने देती है। और भगवान ने क्या किया? कलश को ले लिए अपने देते ही। और भगवान बोले कि मोहिनी मूर्ति बोले कि आप लोग लाइन पे बैठिए, मैं पहले देवता लोगों को पिलाऊंगा और थोड़ा थोड़ा उनको दूंगा, बाकी
आप लोग को बैठना है, लेकिन आप चुपचाप लाइन में बैठिए, है ना। तो अभी देखा ये मोहिनी मूर्ति बोल रहे तो बात मानना पड़ेगा, स्त्री की बात तो मानना ही पड़ता है कि नहीं। तो सारे तैयार हो गए, बैठ गए, लेकिन उसमें से एक असुर था जिसको रहा नहीं गया। क्या नाम था उसका? राहु। राहु को रह नहीं गया राहु रह नहीं गया है कि नहीं। राहु बड़ा ये हो गया, बोला नहीं नहीं खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं खत्म हो जाएगा। राहु क्या क्या अपने वेश को बदला, देवता का पोशाक धारण किया। वो लोग सब योगी है, सिद्धि प्राप्त की है ना, और चुपचाप जाके सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया, है ना। कोई भी चोर ना, कोई गलती करता है ना कुछ अपने निशान छोड़ के चला जाता है कि नहीं। अरे इतना बड़ा गलती किया है ना कि दूसरे जगह बैठा था तो दिखाई नहीं पड़ता था, सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया, दोनों दिख रहे देख रहे कि नहीं। और अभी मोहिनी मूर्ति सबको पिला के आ रहे, जब उनके पहुंचे तो राहु और केतु सूर्य और चंद्र बता रहे कि अरे भैया, वो लोग पहचान लिए कि ये है असुर है, असुर तिथि। तो मोहिनी मूर्ति लेके आए, और मोहिनी मूर्ति देवी थी, राहु ने पी लिया था, लेकिन कहाँ तक? हाँ, मुंह में था एक्चुअली, यहाँ गला से नीचे उतरा नहीं था एक्चुअली। उस समय वही मोहिनी मूर्ति अपने सुदर्शन चक्र से क्या कि उसका गला को काट दी, है ना। तो बताया था कि राहु का जो, क्योंकि अमृत पान की थी, इसलिए सिर जो है अमर रहा, मरा नहीं, लेकिन जो शरीर जो है वो मर गया। तो इसलिए बताता है यहाँ पे भगवान शंकर ने जहर पिए, भगवान शंकर में जहर पिए, और जहर पीने के बाद पूरे प्रसिद्धि लाभ किए, कुछ नहीं हुआ उनका, देखिए। और यहाँ पे राहु छुपा के अमृत को पान किया, लेकिन क्या हुआ? सर कट गया। तो कौन सा अच्छा है? अमृत पीना अच्छा है कि जहर पीना अच्छा है? हाँ, क्या पीना अच्छा है? हरे कृष्णा कृष्णा क्या पीना अच्छा है? प्रसाद तैयार हो रहा है, चिंता मत, भगवान को भोग लगे। क्या पीना अच्छा है? सारे संसार के लोग बोलते हैं कि हमको अमृत चाहिए, अमृत चाहिए, अमृत चाहिए, विष किसको ना चाहिए, है ना। लेकिन भगवान के भक्त लोग कहते चाहे हमारा अमृत हो, विष हो, हमको भगवान का सेवा करना है। और सेवा मतलब क्या? कठिन है। और सबसे बड़ा सेवा क्या है? भगवान का प्रचार करना। प्रचार करना मतलब थैंकलेस सर्विस। क्या है? टीचर का जॉब क्या पता है ना? टीचर मतलब क्या? थैंकलेस। आचार्य, शिक्षक या पिता, माता, गुरुजन, उनका सेवा सबसे क्या है? कठिन है। उनको कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि डांटना ना। टीचर मतलब क्या है? आचार्य मतलब क्या है? उनको डांटना पड़ते हैं, है ना। डांटने का कोई किसी को पसंद नहीं है ना। तो इसलिए ये जो सुंदर लीला है बताया गया कि हमको हमेशा क्या करना चाहिए? एक दूसरे से सहायता लेना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद जी यही चाहते हैं कि हम लोग अगर एक दूसरे से सहायता करेंगे, मदद करेंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और इस प्रचार कार्य को हम पूरे विश्व भर में, कम से कम छत्तीसगढ़ में, नेलासर में तो प्रचार कर सकते हैं। शिवा प्रभु क्यों नहीं? हाँ, शिवा प्रभु का बहुत इच्छा है, लेकिन आप लोग उनको मदद करना चाहिए। हरे कृष्णा हाँ कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से आगे बताया कि ऐरावत में भगवान बोलते कि जितना भी हाथी है उसमें मैं कौन हूँ? ऐरावत हूँ, है ना। और आगे जाके बताया गया कि गजरात में से तथा मनुष्य में मैं राजा हूँ। तो राजा मतलब क्या पता है आपको? राजा किसको बोला जाता है? नरदेव, भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि। तो राजा, गुरु, शिक्षक, पिता, ये जो जिम्मेदारी है सबसे क्या है? जिम्मेदारी है। नरदेव भगवान के प्रतिनिधि है प्रति। लेकिन आजकल राजा नहीं है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हैं। प्रभु रामचंद्र, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, शिवी महाराज, शिवी, है ना। तो ऐसे रांति देव, इस प्रकार का राजा बनना चाहिए, मतलब इस प्रकार का नेता। आजकल के नेता कोई है? आजकल के जो नेता है केवल लेते हैं, देते नहीं है, है ना।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी जथारू की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गो प्रेमानंदे। सबके लिए खास गिफ्ट है नया साल के लिए। नए साल कृपया करके आगे आइए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।